Okay, hello everyone. Today we are taking some numericals from the same chapter, that is the capstans. And here is the one numerical we are having. In this numerical, what we have to do, we have to find the value of this q. The arrangement of the capster is given to you. This is capster, say this is C1, and say this is C2, this is C3, and this is C4. These are the four capacitors attached with the 300-volt battery. What we have to do, we have to find out the value of charge. That means the charge flowing in this circuit that we have to find. So now first of all, for finding the charge, what we have to do, we have to find out the value of C. That means the equivalent capacitance. First of all, we have to find the equivalent capacitance. So for finding the equivalent capacitance, we know that Q equals to CV. This is the formula. The potential difference or the voltage is given to you. It is 300 volt, and C, the equivalent capacitance we have to find. So let us calculate the equivalent capacitance first. For finding the equivalent capacitance, let us redraw this diagram once again. Now what I am doing, just hold it from here and stretch it. इसको होल्ड किया और स्ट्रेच कर दिया. दैट मीन्स ये वाला जो एंड है, से इट्स कम्स हियर, यहाँ पे आ गया. एंड यहाँ पे आने के बाद एक इसमें कैपेसिटेंस अटैच है, से इट इज C4. उसके बाद यहाँ पे हम लोग पहुंचे. सो हियर वी आर हैविंग टू कैपेसिटेंस, इट इज C2. एक इसके आगे और कैपेसिटेंस लगा हुआ है, से इट इज C3. एंड फ्रॉम हियर से एक कैपेसिटेंस और है, से इट इज C1. So this is the arrangement which we are having. So these are the 2 points, and the potential or the battery which has connected to this is 300 volt. So let us find out the equivalent capacitance. So now we know that this C2 and C3 are in series and they are in parallel with this C1. So first of all, let us find out the value of this C2 and C3. So let us start. Since C2 and C3 are in series, and for series we know k 1 upon, let us take it, C dash equals to 1 upon C1 plus 1 upon, it is not C1, it is 1 C2 plus 1 upon C3. So put the values of these. They are how much? They are 200. They are 200 and 200. They are 200 and 200. It is 200 here. ये भी 200 है. And this is 100. And this is C4 is how much? C4 is 100. So put the values. So we get 1 upon 200 plus 1 upon 200. On solving this, the value of C dash equals to 100 picofarad. Picofarad can be changed into farad by multiplying with 10 की power -4, but we will do it later on. So we get C dash equals to 100 picofarad. Now this C dash, this is the equivalent capacitance of this C2 and C3. So this C dash is in parallel with this. So now let us write C dash and C1 are in parallel. So we get, say, C double dash equals to how much? C dash, that means the sum of these, C dash plus C1. C dash is how much? C dash is 100, and C1 is how much? It is 100 again. So what we are getting? We are getting 200 picofarad. So this is the value. Now the circuit is reduced to, this is C4 here, this is C4 here, and this is C dash here, and this is C double dash. Now find it out. Now they all are in series. So what we have to do, so it is not C1, तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, it is only C double dash. So
C double dash and C4 are in series. So we know for series, let us take it now as C. So C equals to 1 upon C equals to 1 upon 100 plus 1 upon 200. Find out the LCM. The LCM will be 200. So it will be 2 plus 1. We get 3 by 200. So C equals to 200 upon 3. So the value of C will be, that means the equivalent capacitance equals to 200 upon 3. Now we have, what we have to find? We have to find the value of this Q. So from here, Q equals to CV. How much is the equivalent capacitance? It is 200 upon 3. And what is the voltage? The voltage is 300. So put 300 here, cancel it. So we get how much? 20,000 picocoulomb. 20,000 picocoulomb. So on multiplying this with 10 की power, how much? 4 minus 4 coulomb. So this is your answer. So this is the charge. This is the value of charge which we are getting. So in this way you can continue, you can try some more questions from your book. Okay, don't take so difficult questions. Okay, take the simple one where the formulas are directly implemented. So solve some more questions from the book. If you have any problem, so you can ask me. You can ask me. You can put up your problems. Now let us start with the new topic, that is dielectric. That is dielectric. So what is dielectric? ओके, वी नो कि इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के से रिप्रेजेंट करते हैं इसको. एंड वी हैव ऑल्सो फाइंड आउट द वैल्यू इन द लास्ट वीडियो यस्टरडे. वी हैव फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के ऑल्सो. ओके, के क्या लिखा था हमने, वट एवर इट इज, जो भी हम लोगों ने डिराइव किया था. सो वी हैव फाइंडेड इट आउट. इट विल बी समथिंग E0 अपॉन के इक्वल्स टू E0 अपॉन E. वी हैव फाइंडेड दिस वैल्यू. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि ये डायलैक्ट्रिक है क्या. डायलैक्ट्रिक क्या है? इट इज अ मटेरियल. कैसा मटेरियल है? ऑब्वियसली कैसा मटेरियल होगा ये? कंडक्टर तो नहीं है. दैट मीन्स दिस इज अ इंसुलेटिंग मटेरियल. कोई इंसुलेटिंग मटेरियल है जिसको हम लोग क्या करते हैं, वी कैन पुट इट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं या फिर पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर के बीच में हम लोग इसको रख देते हैं. एंड जब इसको रखते हैं, इन दैट कंडीशन व्हाट हैपन, लेट अस सी. तो इसके लिए मैंने क्या किया, वी हैव टेकन एक कैपेसिटर. वी हैव टू टेक एक कैपेसिटर लेना पड़ेगा. कैपेसिटर में सपोज इनिशियली इसको प्लस चार्ज, मैंने प्लस क्यू चार्ज दिया, इसको प्लस क्यू चार्ज दिया. एंड यहां पे माइनस क्यू चार्ज इज डेवलप्ड. ओके, इंडक्शन से माइनस क्यू चार्ज डेवलप हो जाएगा. अब क्या होगा, नाउ व्हाट हैपन, एक इंसुलेटिंग मटेरियल से वी हैव केप्ट अ इंसुलेटिंग मटेरियल, और वी कैन से वी हैव पुट इट अ डाइलेक्ट्रिक. एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मैंने रख दिया. अब डिपेंड करता है कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कैसा है. डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अगर पोलर है, पोलर मींस के जिसके मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, पोल्स में एग्जिस्ट करेंगे. नाउ टू अंडरस्टैंड दिस व्हाट वी हैव टू नो, व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू थोड़ा सा केमिस्ट्री वाले पार्ट में जाना पड़ेगा. कि सपोज लेट इफ आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ HCl. HCl में क्या है, इट इज कोवलेंट बॉन्ड. कैसा कोवलेंट बॉन्ड है? पोलर कोवलेंट बॉन्ड है. पोलर कोवलेंट बॉन्ड डेवलप कैसे होता है? इफ आई सी द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ये H है. सो वी आर H मीन्स के इट इज हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन्स, 1 फ्री इलेक्ट्रॉन्स. एंड सिमिलरली Cl, इफ आई टॉक अबाउट द Cl, तो Cl में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? Cl मीन्स के देयर आर 7 फ्री इलेक्ट्रॉन्स देयर. 7 free electrons are there. So what to do now? अब क्या करना है कि Cl means के 7 electrons, let us represent them with a cross 6, and this is 7. So that means there is a sharing of 1 electron between hydrogen and chlorine. एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी. तो Cl के पास क्या है? Cl के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो ऑब्वियसली जो बॉन्ड बनेगा, इट इज लिटिल बिट शिफ्टेड बिटवीन
टूवर्ड द Cl की तरफ शिफ्ट होगा। तो Cl की तरफ जब बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा तो उससे क्या होगा बच्चे, उससे जो हाइड्रोजन है उसके ऊपर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। दैट मीन्स यहां पर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। सिमिलरली यहां पर एक नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। सो इन दिस वे दे आर द पोलर मॉलिक्यूल्स। अब यहां पर क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को जब मैंने रखा किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, सपोज वी हैव केप्ट देम इन इलेक्ट्रिक फील्ड, नाउ इन दिस केस व्हाट हैपन, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और दैट मीन्स दे क्रिएट अ नेगेटिव चार्ज है। सिमिलरली यहां पर नेगेटिव चार्ज है तो यहां पे सारे के सारे पॉजिटिव आ जाएंगे। एक हमारे पास इंटरनल फील्ड है और एक क्या है आपके पास एक्सटर्नल फील्ड है। दो फील्ड डेवलप हो गई है, एक इंटरनल फील्ड है और एक एक्सटर्नल फील्ड है। इंटरनल फील्ड डेवलप कैसे हुई है, बिकॉज ऑफ दीज चार्ज जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर डेवलप हो गया है। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में माइनस का चार्ज ये आ गया एंड प्लस का ये आ गया, तो इससे यहां पर एक आपकी इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई है। सेम इट इज ई, एंड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपके पास है ई, से इट इज E0। अब इससे होगा क्या कि जो नेट फील्ड है आपकी, द नेट फील्ड विल बी रिड्यूस। अब रिड्यूस कैसे होगी, रिड्यूस ऐसे होगी कि दोनों की जो डायरेक्शन है अपोजिट है। इसकी डायरेक्शन क्या है, इट इज मूविंग लाइक दिस। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो E0 है इसकी डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव है, लेकिन अंदर जो फील्ड डेवलप हुई है इट इज द डायरेक्शन इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, अगेन द डायरेक्शन इज अपोजिट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम लोग निकालेंगे सो इट विल बी से इट इज E डैश और वट एवर इट विल बी E0 माइनस E। सो ऐसे करके वी कैन से कि वेन एवर वी कैन इंट्रोड्यूस एन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इन बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में जब हम लोग कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हम लोग रखते हैं तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रिड्यूस। जो इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होगी तो ऑब्वियसली उसका पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। ओके, सो पोलर मॉलिक्यूल्स क्या है, जो पोल्स डेवलप करते हैं, और पोलर मॉलिक्यूल्स दे एक्ट लाइक अ डायपोल की तरह एक्ट करेंगे व्हेन दे आर केप्ट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। और इनकी मूवमेंट कैसे होगी, द मूवमेंट विल बी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूवमेंट होगी। ओके, दे एक्ट लाइक अ डायपोल, स्मॉल डायपोल की तरह ये एक्ट करेंगे, एंड इन दिस वे अ फील्ड इज क्रिएटेड। एक इंटरनल फील्ड क्रिएट हो जाएगी और एक एक्सटर्नल फील्ड क्रिएट हो जाएगी। सो द चैप्टर इज फिनिश्ड, नथिंग इन दिस चैप्टर लेफ्ट, सो ओनली द न्यूमेरिकल पार्ट which you have to do by yourself, and if you have any problem so I can solve it, or you can ask me, you can put up your problems on the WhatsApp. Okay, you can put up your problems on the WhatsApp also. So thank you very much, it is enough for today. Revise it properly, and in the next video I will take some important topics from the chapters which we have covered till now. Thank you very much.